if you go through this test first, the way they have framed basic instructions, most persons have disagreement in their relationships. Indicate below the approximate extent of agreement or disagreement between you and your partner for each item. Handling family finances. Always agree to always disagree. Similar to Likert scale. Likert scale मध्ये 5 ऑप्शन्स असतात जे न्यूपीआय मध्ये आहे तसं, बट हिअर दे हॅव सम ऍडिशन. वन मोर वेगळं आहे. Always agree, almost always agree, occasionally disagree, frequently disagree, almost always disagree, and always disagree. Dyadic adjustment, it is related with family members, partners, siblings, and with some other relations. Demonstration of affection, religious matters, agreement or disagreement, sexual relations, philosophy of life. So some of these tests, it will help us to check the compatibility between partners. Of course, this is not actual compatibility scale, but this can be supported to that another main tool. Here, first section. In second, see, how often do you discuss or have you considered divorce, separation, or termination your relationship? वो 5 साल पहले जब वो ऐसे हुआ था तब एक आध बार मुझसे निकल गया था. Rarely. Okay. More often than not. हल्ली हल्ली असं खूप बोलणं होत आहे आमच्यामध्ये. ऐसा कुछ है या फिर कुछ भी नहीं. Diagnosis, either for treatment and even to understand the current phase of that disturbance. How often do you or your mate leave the house after a fight? झगड़ा हुआ और फिर घर छोड़ दिया, ऐसा कब हुआ है? Now see, इथे हे स्टेटमेंट्स आहेत, ओके, की तुम्ही भांडणं किती करतायत, फिर झगड़ा कैसे, ये सब कुछ. Do you kiss your mate and the frequency? Not only ideal, but even in real, आत्ताचं काय फेज आहे? For such test tools for diagnosis and even as well as for premarital counseling, postmarital counseling with respect to that particular cultures through which these two people belong. By solving this test also, they may get an insight की अरे इथे काय आपण करतोय आणि इथे आपण काय मार्क करतोय. खरंच आपल्यामध्ये ते सायकोलॉजिकल इंटिमसी, सायकोलॉजिकल कनेक्शन सच में है या नहीं, अगर है तो कितना है, like, so they may get their own objective plus subjective insight. This is the use of test in assessment. How often would you say the following events occur between you and your mate? एकत्र किती हसलेत, किती वेळा हसलेले? Apparently as a lay person कि अरे हे तर काय, हे तर किती सोपं आहे, हे तर किती बेसिक आहे, उसमें क्या है, उसमें ही बहुत कुछ है. Because never less than once a month, once or twice in a month. In the last week, I was conducting a workshop for managers. एका कंपनीचे एक 7-8 जण होते, त्यांचे मॅनेजर्स हे सगळे, आणि स्ट्रेस मॅनेजमेंटचा आस्पेक्ट होता तिथे. सो ॲज अ पार्ट ऑफ इट आय जस्ट आस्क देम दॅट तुम्ही रिलॅक्स कधी झालं लास्ट टाइम. So when you were totally relaxed, physically as well as, mentally. So can you recall the last event? 2-3 minutes, it was complete silence. And then, so one particular participant,
ही सेड कि सर जब वो हमारी एंट्रेंस एग्जाम थी वो पर्टिकुलर, तब मैं टोटली कंप्लीटली रिलैक्स था। आई सेड के सिंस हाउ, मतलब उसको अभी कितना टाइम इन सब में गया। ही सेड कि एटलीस्ट 15 years. I haven't thought about it, he said further. की असा विचार मी कधी माझ्याबद्दल केलाच नाही, आणि आता मला असं जाणवतंय की मग मागच्या 15 वर्षात माझं एकतर फिजिकली रिलॅक्स आहे, पण सायकोलॉजिकली काहीतरी वेगळं चालू असतं मनात का, किंवा काही वेळेस मी अदरवाईज असा पीसफुल असतो, बट फिजिकल एक्झर्शन खूप होत आहे. हे दोन्ही एकत्र झालंय असं मला रिसेंट टाइम पिरियड मध्ये आठवत नाही. सो जो चीज अभी ऐसे ये डिस्कशन में हुई, वैसे ही ये क्वेश्चन फॉर्म में इस टेस्ट में डेवलप किया है उन्होंने. Once a day or more often, yes, that reflects your actual connection with your partner. Work together on a project. This can be anything. Now, थोड़ा सा अलग बट ऐसा की रिसर्चला फाइंडिंग सपोर्ट किती असतो हे वेस्टर्न कल्चर, हे वेस्टर्न कंट्रीज मध्ये. एक आर्टिकल था न्यूज़पेपर में, आई थिंक उसका कटिंग मेरे पास है किसी फाइल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस वो है. तो उस आर्टिकल में क्या था कि उन्होंने उनका फाइंडिंग ऐसा था कि जो पार्टनर एक साथ बर्तन धोते हैं वो बहुत खुश होते हैं, एज कंपेयर टू दोज हु डू द दिस वर्क्स व्हेरी सेपरेटली. तू तेरा मैं मेरा, तू तुझी कामं कर, मी माझी कामं करतो, आपण आपलं हे मॅनेजमेंट करून टाकलं आणि मग आपण बघू आपलं काय कसं. दिस इज जस्ट अ सिम्पल बेसिक एक्झाम्पल. हे म्हणजे भांडी घासणं खूप काही महत्वाचं आणि ते सिंगल मोस्ट असा क्रायटेरिया आहे असं बिलकुल नाही, बट हाऊ यू टॅकल, हाऊ यू डील विथ इट. कंस्ट्रक्टिव्ह ऍक्टिव्हिटीज मधून सुद्धा तुम्ही ती तुमची इंटिमसी, कनेक्शन, वो सच में वाला प्यार, वो आप कैसे प्रैक्टिस करते हो, इट इज इम्पोर्टेंट. And so these things are important for even diagnosis. Being too tired or no showing or not showing love, and then even variations are there. Which of the following statements best describe how you feel about the future of your relationship? Read all the statements and you can choose any one out of it. So the term is there, dyadic adjustment scale. We'll discuss the brief outline of this test in terms of diagnostic aspect, and then I would like to know from you that any thought फैमिलीचा रोल हा डायग्नोसिस मध्ये का बरा आहे, इसके बारे में आप मुझे बताओ बाद में. इज इट क्लियर सो फार अबाउट द टेस्ट? हे गुगल क्लासरूम वरती शेअर केलंय काल. Adjustment. Family is the first institute for child where he learn, he observe, he understand, he practice almost all the things. For that child, family is the basic representation of society. So dyadic adjustment scale, it is related with family issues. इसीलिए सेकंड चैप्टर के 4th सेक्शन में ये टूल हमें है सिलेबस में. Earlier also, so they have developed original test, ती आणखीन मोठी आहे. It is around more than 60 or 70 statement, but then they have shortened it. It gives us a quick snapshot of multiple dynamics: quarrel, love, affection, physical relations, everything. Multiple dynamics within a given relationships, as well as an overall assessment of stability of relationship. This point, it is important.
If your relationship it is stable, then it suggests that you are more means you have a good psychological well-being. So DSM criteria में भी वो एक फैक्टर हर डिसऑर्डर में है. If the above criteria affects person's personal, social, occupational relationship, it is self-report which assess 7 dimensions of couple relationships within 3 over anchoring categories. ते कोणत्या कोणत्या आहेत तेही आपण बघणार आहोत पुढे. These are the 3 main categories and these 7 areas. 7. First one is decision making, values, affection, then stability, conflict, regulation. अब 2 पीपल एक साथ आएंगे तो थोड़ा वो 19-20 तो होगा. जे सोप्या मराठी भाषेत म्हणतो की भांड्याला भांडं लागणं, वो होगा ही. बट उसके बाद आप उसको कैसे पैचअप करते हो, कितने जल्दी, किस तरीके से, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. मियाँ बीवी में झगड़ा होना ये अलग बात नहीं है, ये कहानी घर घर की है. अलग कहानी कब होती है कि झगड़ा कितने जल्दी सॉल्व होता है, किस तरीके से तुम्ही कन्व्हिन्स कसं करता, तुम्ही ते काय ज्याला मनवणं म्हणू ते कसं करताय, that part. And cohesion, so cohesively activities, discussion at least. So these 3 areas and these 7 dimensions. And on this particular in this particular test, scores. If the raw score is between 0 to 47, then it reflects marital or relationship distress. काहीतरी थोडंसं ते गडबड आहे, अजूनही तो दोघांमधला तो दूर काही बाहेर पडत नाहीये. The cutoff score is 48. Higher the score, higher the satisfaction, higher the adjustment. As simple as it is. स्कोर जितना ज्यादा उतना. आता पुन्हा गडबड अशी आहे की हस्बैंड का स्कोर ज्यादा है लेकिन वाइफ का कम है, या फिर वाइस वर्सा, मग तिथे काउन्सिलिंगला स्कोप भरपूर आहे. सो इट रिफ्लेक्ट्स दैट एक्चुअल एडजस्टमेंट. किसी एक का परसेप्शन अलग है और दूसरे का परसेप्शन कुछ और है, लेकिन दोनों का रिलेशनशिप तो एक ही है. इट इज लाइक एक ही बस में बैठे हैं, लेकिन एक कह रहा है कि आगे जाएंगे और दूसरा कह रहा है कि नहीं हमें तो पीछे जाना है. ड्रायव्हरचं झालं कन्फ्युजन. ती अवस्था इथे होते फॅमिलीमध्ये. सो like that, and some in detail other information about psychometric aspects of the test. Reliability कितनी है, इवन व्हॅलिडिटी कसं काय वगैरे हे डायग्नोसिस मध्ये आता हे इतकं इम्पॉर्टंट नाहीये. बट why I am intentionally sharing these things, because in future at the time of your practice you must know all the details of the test which you are administering in your practice. That's why. Now you tell me why family part it is there or it should be there while addressing the psychological issues or psychological abnormality. Yes, anyone please. त्या माणसाचा प्रॉब्लेम असेस करताना आपण फॅमिलीला का बरं कन्सिडर करायला पाहिजे? एनीवन? ट्राई. डायग्नोसिस में फैमिली क्यों है अपने सिलेबस में? थोड़ा एक ऐसे विचार करा, सिर्फ जो कुछ उन्होंने दिया है सिलेबस में बस वो पढ़ना ही है, हे एकदम टिपिकल बेसिक अप्रोच झालं. लेकिन क्यों, व्हाई दे हैव एडेड दिस पॉइंट इन आवर सिलेबस? काय रिझन असू शकेल?
Hello, am I audible? Yes, sir. Yes. Okay. Okay. Any try? Any guess? Because I guess family makes up a major part of a personality, Mhm. right from the childhood and all. And in fact, the environment in of family matters a lot for the child as well as the adolescent, which further shapes up the personality. Okay. Okay. It can be the reason. Correct. Any other thought? एकदम साइलेंट मोड पे है मैं पार्ट 2. येस बोला काहीतरी तर विचार करत असाल तुम्ही आता. एनी थॉट, एनी आयडिया? सर यस. सर मे बी मतलब हो सकता है, पता नहीं, कंफर्म नहीं है, पर इट्स ओके. जैसे अगर कोई कन्फ्लिक्ट, अगर कोई पर्सन के साथ समथिंग मतलब इज गोइंग ऑन, तो फैमिली एक सपोर्ट सिस्टम है. हाँ अगर हाँ. हम लोग को ऑफिस में कोई स्ट्रेस है या हम लोग किसी फिजिकल, क्या बोल सकते, डिजीज से गो थ्रू कर रहे हैं, तो फैमिली इज देयर ऑलवेज सपोर्ट. देन अगर कोप करने के लिए भी हम लोग फैमिली के थ्रू, मतलब कोपिंग, सेल्फ एस्टीम की हमारे फैमिली में हमें कितना रिस्पेक्ट मिलता है. इन यस. सब बहुत सारे फैक्टर्स है. एब्सोल्युटली राइट. और एब्सोल्युटली. डायग्नोस्टिक में इसीलिए दिया. Okay, correct, correct. Avi and you shared very important points. Some conditions and problems, see, they are not actual and core mental disorders. They are not. But their inclusion in DSM-5, in the sense family aspects, their inclusion in DSM-5, it is meant to draw attention to the scope of additional issues, as they rightly said, that supportive factors that may be encountered in routine clinical practice. And second thing, to provide a systematic listing that may be useful to clinicians in documenting these issues. स्क्रीन पे हमें सिर्फ हीरो हीरोइन दिखते हैं या फिर विलन दिखाई देता है, लेकिन डायरेक्टर कौन है वो स्क्रीन पे दिखाई नहीं देता. स्क्रिप्ट राइटर कौन है वो स्क्रीन पे दिखाई नहीं देता. म्यूजिशियन दिखाई नहीं देते हमें स्क्रीन पे. हम म्यूजिक सुनते हैं लेकिन म्यूजिशियन दिखाई नहीं देता. कितने बार उन्होंने उसकी प्रैक्टिस की है ये हमें पता नहीं चलता. हम सिर्फ एक बार वो गाणं सुनते हैं. त्या एका शॉट साठी किती रिटेक घेतलेला आहे त्यांनी ते आपल्याला समजत नाही. वो बाजीराव का रोल रणवीर ने बहुत अच्छा किया, एप्रिसिएशन, करेक्ट. बट उसके लिए उसने क्या हार्डवर्क किया ये हमें जनरली यूजुअली दिखाई नहीं देता. उसने क्या रेफर किया, उसने कहाँ पे जाके क्या इंफॉर्मेशन ली, उसने किससे डिस्कस किया, कितनी बार कैसे प्रैक्टिस की, फिर एक्सेंट हो, फिर ड्रेपरी हो, वगैरह वगैरह वगैरह. इन शॉर्ट ये सब हो गया वो बैक स्टेज वाला पार्ट. बट
वो वहां पे है इसीलिए तो वो फिल्म बहुत अच्छी चली। द सेम थिंग, डिसऑर्डर दिखाई देता है लेकिन उसके पीछे का जो मेन कॉज है या फिर डिसऑर्डर क्योर होने में भी फैमिली प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एच सेड दैट सपोर्ट सिस्टम। काउंसलर बहुत अच्छा है आपका, आप भी काउंसलर से बहुत अच्छे से डिस्कस करते हो, लेकिन वो 1 घंटा 2-3 दिन में या फिर 1 हफ्ते में 1 घंटा वो कॉन्वर्सेशन, rest of the time you are with your family members, you are in your particular specific family environment, so that is also important. And that's why some of the issues they are it is called as relational problems. Why the person is constantly stressed? Because having issues with partner, with siblings, with children, with parents also. The problem that affects the course prognosis, फैमिली सपोर्ट जितना अच्छा होगा उतना उस इंसान की रिकवरी जल्दी होगी। एंड लाइकवाइज नाउ फॉर धिस आपण हे फक्त आउटलाईन बेसिक एक अशी डिस्कस करतोय, बट आय विल सजेस्ट द मोर यू एक्सप्लोर इन दिस एरिया, the more you will be able to apply and practice in future as family therapist. Parent child issue, sibling issues, छोटा बड़ा, फिर कंपैरिजन, एडलरची थेरी, पुन्हा अपब्रिंगिंग with parents or away from parents, nowadays even in नाशिक and some आणि आता कुठल्याही प्रकारच्या स्कूलमध्ये, सो पहिले तो एक ऐसा था कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्कूल्स आर, म्हणजे एक बेसिक असं रिलेशन, नेहमी पॉझिटिव्ह किंवा असं मीडियम आणि याचं नाही, बट अभी हर किसी स्कूल में सिंगल पेरेंटिंग के इश्यूज बढ़ रहे हैं। इट मे बी बिकॉज ऑफ डेथ और मे बी बिकॉज ऑफ सेपरेशन और मे बी बिकॉज ऑफ डिवोर्स और एनी अदर थिंग। सेपरेशन मतलब डिवोर्स नहीं लिया है लेकिन सेपरेट रह रहे हैं। सो अपब्रिंगिंग विथ पेरेंट्स, अवे फ्रॉम पेरेंट्स, otherwise the child is okay, but constantly he is observing the distress with parents की आई बाबा सारखं असं असं वागतात, बोलतात. सो अगेन कभी कभार होना ये हर घर की कहानी है, बट देन फ्रीक्वेंसी मैटर्स, दैट ड्यूरेशन मैटर्स, and intensity and depth of that particular distress it matters. And of course with spouse or intimate, क्योंकि एक बार वो एक मैडम ने कहा था कि उनसे डिस्कस कर रहे थे, वो एक फंक्शन था, तो सहज मधल्या एका ब्रेक मध्ये हम ऐसे डिस्कस करत होतो, सो तब उन्होंने कहा कि 2 चीजों में स्टेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है, एक मतलब करियर और दूसरा मतलब मैरिज। बाकी आगे पीछे होना, 19-20 होना, चेंज करना वगैरह ओके, बट करियर की और जहाँ पे पार्टनर की बात आती है कि काहीतरी स्टेबिलिटी, एक्सेप्टन्स तिथे हवा कि हाँ, सो नो वन इज परफेक्ट, बट एटलीस्ट दैट एक्सेप्टेंस के इसमें ये 4 चीजें ऐसी है कि जो मुझे अच्छे नहीं लगती, बट अदर 10 थिंग्स आर देयर विच आई कैन इजिली इमिजिएटली अप्रिशिएट. सो नाउ इट इज माय चॉइस की मी कुठे आणि कसा फोकस करतोय किंवा काय करतो, अँड इट शुड बी फ्रॉम बोथ द साइड्स. सो अदर थेरीज आर देअर, ते मग जेव्हा तुम्ही ऍडिशनल तुमचं ते रेफर कराल तेव्हा तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी खूप इन डिटेल मध्ये समजतील. सो फॅमिली असेसमेंट टेक्निक्स बरेच आहेत त्याच्यामध्ये, इंटरव्यू आहे, फैमिली फोकस थेरेपी है, जब स्किज़ोफ्रेनिया का पार्ट आपका इन डिटेल होगा तब ट्रीटमेंट में एक्सप्रेस्ड इमोशन करके एक कंसेप्ट है, इट इज इम्पोर्टेंट, आई सजेस्ट टू रेफर इट, गो थ्रू इट. And that's why these 3 things are important: behavioral issues, cognitive issues or problems, and affective problems. ये जो अभी ये सेकंड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ये एडिशनल है, हे सिलेबस मध्ये नाहीये, पण
इट इज इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड अदरवाइज ऑल्सो, कारण ही बॅकग्राऊंड जर समजली तरच आपण फॅमिली थेरपी किंवा ते फॅमिली ऍडजस्टमेंट स्केल, डायटिक एडजस्टमेंट स्केल, फैमिली एनवायरमेंट स्केल, तभी हम वो ठीक से एडमिनिस्टर कर सकेंगे, या फिर तभी हम डिसाइड कर सकेंगे दैट व्हेन which particular tool we have to administer. Behavioral problem, in that these are the core issues, main sub areas: supervision and involvement with the child, avoidance without resolution of problems. I will just suggest, it is just a thought. For Saturday activity, any one of you can take this point, that what exactly it is. इसमें और क्या क्या है, काय काय आणखीन स्टडीज झालेले आहेत, रिसर्च कुठले कुठले आहेत, किंवा थेरपी बेस्ड काही असे एक्झाम्पल्स आहेत का, आपण काही ऍक्टिव्हिटीज अशा डिझाईन करू शकतो का, ऍटलीस्ट डिस्कस करणं. पॅरेंटल प्रेशर, टाइप्स ऑफ पॅरेंटिंग, मेनी थिंग्स आर देअर. Independent parental control and parental over protection, these are the problems that affects our behavior in terms of family system. Cognitive in the sense, hostility toward or scapegoating of other partner, other person in the family, negative attributions, unwarranted feelings of estrangement. हे जितकं तुम्ही आणखीन एक्सप्लोअर कराल, मी मुद्दाम तुम्हाला फक्त हे हिंट्स देतोय. हे एक्सप्लेन करायला गेलं तर आणखीन 1-2 लेक्चर सहज होतील याच्यावरती, विथ एक्झाम्पल्स, विथ सम व्हिडिओज आणि काही आणखीन ऍडिशनल्स. बट आय वॉन्ट यू पीपल टू रेफर इट सो दॅट युअर स्टडी इट विल बी मोर इलॅबोरेटिव्ह इन नेचर. And in terms of affection, feelings of sadness, apathy, or even anger, these are the things. Remaining part, remaining couple of tests from second chapter, so we will continue tomorrow. Okay, understood? Okay, sir. Okay, sir. Yes. Okay, sir. Okay, yes. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.